Hi aspirants, welcome at Exam Zone 24/7. Today we will be continuing our discussion related to previous year papers of SBI CBO. Hope you will find it useful. Okay, let us continue the session and go onwards. Okay, hope this is visible to you. Earlier we have finished till 122. We will be discussing from 122, question number 122. The most appropriate use of NEFT and use of RTGS over NEFT. What is the most appropriate use of NEFT over RTGS? See, let me clear something about your what you have in concept. See, NEFT, no minimum amount, okay, of transfer, okay, and NEFT is done in netting basis on half hourly batches. For example, suppose here is a bank A, here is a bank B, and here is Reserve Bank of India, RBI. Both the banks having current account with RBI. Bank A is also maintaining current account with RBI. Bank B is also maintaining current account with RBI. Now, suppose a total of 8 lakh rupees NEFT. Okay, NEFT. See, do not think that if rupees is more than 2 lakh, then it is RTGS. No. Even more than 2 lakhs can also be transferred to NEFT. Okay. There is no criteria for the minimum amount, but there is no such criteria of maximum amount. Okay. There is no criteria for the maximum amount. Okay. From rupees 0 to any amount you may transfer through NEFT, but for RTGS only 2 lakh is the limit. More than from 2 lakh onwards you can do in RTGS. Now suppose this bank sent the rupees 8 lakh through NEFT and the bank B sends 9 lakhs to via NEFT to bank A. To bank A, and it is sending to bank B. Now, in RBI account, total settlement will be of only 1 lakh. Means RBI will collect all the NEFT total if it is 8 lakhs and this is 9 lakhs. Then in this case, RBI will give the difference amount of 1 lakh credit to A's current account, and in this case, the 9 lakh will be credited via NEFT to A. Correct? This is the netting. But suppose the bank A says RTGS of 8 lakhs and bank B sends RTGS of 9 lakhs, then the gross amount will be settled on real time basis. Means the Reserve Bank mark this account as 8 lakh in debit of A and 9 lakh in debit of B. Messages of NEFT and RTGS will be sent to A and B, and A and B will be required to credit immediately on gross basis to NEFT through NEFT or RTGS, whatever it is. But in RTGS, it is immediately, there is a gross basis, immediate amount, okay, and real time basis. Okay. In NEFT, there is a netting, provision of netting. Okay.
we see that there is actually less involvement of actual involvement of fund as compared to RTGS. Okay. Then if urgently 5 lakhs is required, then we will use RTGS. If 5 lakh is required to transfer, you may use NEFT or RTGS. Suppose in the exam it is asked that the transfer mechanism used to transfer 5 lakhs of rupees from bank A to bank B is A. NEFT, B. RTGS, C. Others, or SWIFT, D. None of these, or D. A and B both, 1 and 2 both. So 1 and 2 both will be the answer because you may do it. You may do so. Now see, there is a question related to GDP, and we will discuss about GDP, then we will talk about nominal and real GDP. Suppose, what is the meaning of GDP? GDP of value of all goods, including services also, generally. But here we will go through goods only. Hmm. Here you may write services produced in a year is GDP. Suppose my country has produced 1 pen, 2 copies, 3 rulers, okay, of 10 rupees, of 20 rupees, of 30 rupees each. In this case, what is produced? 1 pen means 10 is each, means total rupees 1, plus production of 2 copies means 2 into 20, plus production of 3 rulers, 3 into 30. Okay. Suppose this year, this production was done in year 2024. Okay. Now it will be 10 plus 40 plus 90. It will be 140 rupees. If it is in rupees, then it is rupees. Your GDP is this value. तो अभी आपका GDP क्या हो गया? ये, इसी को बोलते हैं रियल GDP. सपोज जो कंट्री ने प्रोड्यूस किया था वो सामान सेल नहीं हुआ, वो सामान बचा रह गया, और अभी भी 1 pen, 2 copies एंड 3 rulers हैं. बट मार्केट में डिमांड है ज़्यादा, इंक्रीजिंग डिमांड है. आफ्टर 1 ईयर इसका प्राइस चेंज हो गया. ये हो गया 20 रुपीज़, ये हो गया 30 रुपीज़, ये हो गया 40 रुपीज़ ईच. तो और ये ईयर हम बोल देते हैं, ईयर हो गया ये अभी, दिस ईयर विज 225. नाउ इन दिस केस द GDP विल बी, इसकी जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज ऐसा तो है नहीं, गुड्स का ऐड कर लेते हैं. 1 pen है, 20 ईच का है, तो 1 into 20 मतलब 20 हो गया, प्लस 2 copies है, 30 copies पर है, तो रेट तो 2 into 30 plus 3 into 40, it will be equal to 20 plus 60 plus 120. Okay, it is 200 रुपीज. अभी GDP क्या आ गया 2025 में? 200 रुपए. और 2024 में, 2024 में हमने कैलकुलेट किया कितना? 140 रुपीज. देखो, GDP बढ़ने का एक्चुअल मतलब यह है कि आपके पास गुड्स बढ़ने चाहिए, लेकिन यहाँ पे गुड्स नहीं बढ़ा, यहाँ पर केवल प्राइस ही बढ़ गया, मतलब प्राइस ज्यादा,
प्राइस ज्यादा होना मतलब इन्फ्लेशन होना, महंगाई होना। महंगाई बढ़ के जीडीपी बढ़ गई, तो जो जीडीपी बढ़ रही है बहुत जगह पे आप सुनते हो, तो वो जीडीपी अच्छा है या बुरा है ये आपको चेक करना पड़ेगा, आपको अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि महंगाई से जीडीपी बढ़ी है या एक्चुअल में जीडीपी बढ़ी है। फिर अभी क्या होगा, नाउ सी, इन दिस केस इट विल बी 200, तो इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। देखो, तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है, नॉट गुड। रियल जीडीपी बढ़ रही है तो ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे गुड्स ज्यादा हो जाते, 2 पेंस हो जाते, तो हम मानते हैं कि जीडीपी बढ़ चुकी है। ठीक है, प्राइस इतना रहने पे, प्राइस की वजह से जीडीपी है तो नहीं है। ये एसबीआई सीबीओ में क्वेश्चन 123 आया था, अभी हम इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन नॉमिनल जीडीपी राइजेस एंड रियल जीडीपी स्टॉल्स। नॉमिनल जीडीपी अगर बढ़ रही है और रियल जीडीपी अगर घट रही है तो क्या होगा। नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है इसका मतलब हमने अभी देखा कि प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब रियल जीडीपी घट रही है। तो पहला ऑप्शन क्या है, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होगा, इफ देयर विल बी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन देन रियल जीडीपी विल राइज। क्यों, सामान ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो रियल, अगर सामान के बढ़ने से, सामान के प्रोडक्शन से जीडीपी बढ़ती है देन इट इज रियल जीडीपी। बट यहाँ पर सामान के प्रोडक्शन से जीडीपी नहीं बढ़ रही है। यहाँ पर कैसे जीडीपी बढ़ रही है, कह रहे नॉमिनल, मतलब प्राइस बढ़ने से जीडीपी बढ़ रही है, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया है, और इस वजह से इरोडिंग रियल आउटपुट। यस, रियल आउटपुट मतलब एक रियल जीडीपी कम हो गई है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ग्रोथ ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज, नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। ग्रोथ ड्यू टू पॉपुलेशन, किस टाइप की ग्रोथ है, क्या ग्रोथ है, ये कुछ इसमें दिया नहीं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, देखो कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग CIG प्लस एक्स माइनस एम होता है। ठीक है, बट ये जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए है, जीडीपी का कंपैरिजन करने के लिए अभी नहीं है ये। एग्रीकल्चर बूम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि अभी ये इसमें यही नहीं पता है कि भाई एग्रीकल्चर बूम आएगा तो नॉमिनल जीडीपी नहीं घटेगी, फिर रियल जीडीपी बढ़ेगी। इधर बोल रहा है रियल जीडीपी स्टाल्स, मतलब रुक गई है, तो ये एग्रीकल्चर बूम भी नहीं हो सकता, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी नहीं करे, क्योंकि जीडीपी कैलकुलेट करने में ये यूज होता है, तो रियल जीडीपी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बढ़ी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से एक हम लेक्चर, इफ पॉसिबल आई विल बी टेकिंग ऑन बेसिक इकोनॉमिक्स फॉर SBI CBO एंड GBO, इवन फॉर LBO यू में से। एज अ बैंकर यू मस्ट नो दिस, नॉट फॉर एग्जाम। एग्जाम तो आते रहेंगे, आप देंगे, हो सकता है नहीं हो सकता, वो आपकी मेहनत, आपके प्रूडेंस, इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट है। बट यू शुड बी नॉलेज सेवी, आपको नॉलेज अपना इनरिच करते रहना चाहिए। ओके, so that when you put your point, you put all with data, all with comparisons, not just bombarding of your words. Okay, see question 124, in COP 28 in Dubai 2023 the final agreement made history by explicitly mentioning transiting away from fossil fuels, मतलब पेट्रोल, डीजल ये चीजें यूज नहीं करेंगे, उससे अवे करेंगे, ये मार्क किया। लेकिन ये किस में है, ये था करेंट अफेयर्स का सेक्शन है ये, और इसको आप बोल सकते हो समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। अच्छा, अभी बहुत सारी समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हो रही, कौन से याद करें, ग्लोबल, ग्लोबल में इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड है, तो आप ज्यादा फोकस करना है। ओके, इंडियाज
एक्ट ईस्ट एक्ट पॉलिसी उस समय न्यूज में था, ठीक है। अब लेकिन क्या है ना, देखो इस तरह की जो है अभी एशियान के मेंबर्स, एशियान मेंबर कंट्रीज भी पूछ सकता है अगर ऐसा आए। ब्रिक्स का भी न्यूज में चल रहा है, तो आपको ब्रिक्स के सभी मेंबर कंट्रीज पता होने चाहिए, ठीक है। कब फाउंडिंग ईयर पता होना चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट कितने लेटेस्ट एंट्री कौन किया है वो याद होना चाहिए ब्रिक्स का, क्योंकि अभी ब्रिक्स न्यूज में चल रहा है, तो ये चीज ब्रिक्स पूछा जा सकता है। ओके, अब ये हम कर आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जब भी ये चीजें आप पढ़ते हो, वेन एवर यू आर स्टडिंग दीज थिंग्स, लाइक यू आर स्टडिंग जीके, तो देन यू फोकस ऑन इंटरनेशनल इवेंट्स आल्सो। ओके, नाउ अब हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंबाइंड सीपीआई बास्केट, वेट मिनट, ओके, सबसे ज्यादा वेट किस चीज का है, ठीक है, लार्जेस्ट वेट, तो एक इंडेक्स जो बनाते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ओके, तो लार्जेस्ट वेट किसका है ये क्वेश्चन पूछा गया। तो उस देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब रिसीव होगा, अभी रिसेंट में तो हाउसिंग देखोगे आप है, ठीक है। बाय दैट टाइम ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम जब भी रिलीज होता है उसके हिसाब से आपको पढ़ना है, उसके क्या करने हैं उसमें, बास्केट ऑफ आइटम्स, उसमें लार्जेस्ट बास्केट किसका है, स्मॉलेस्ट बास्केट किसका है। तो आई विल बी शेयरिंग रिसेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा। बाय द सेम टाइम यू नीड टू गो थ्रू व्हाट इज करेंट बेस ईयर, ओके, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो जब ये पढ़ रहे हो तो आप सब पढ़ो, देखो ये जनरल सेंस में चीजें, इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज है, तो ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट जो आता है, देखो आईएमएफ है, तो अब ये पूछ सकता है कि हु रिलीजेस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, या ये भी पूछ सकता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज इशूड बाय, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट और फिस्कल पॉलिसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, दैट इज ग्लोबल ग्रोथ इन्फ्लेशन एंड ट्रेड डेटा होता है जो, वही होता है उसका। मंथली अपडेट्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी, इससे कोई लेना देना नहीं, वो ओवरऑल जो आईएमएफ निकालता है वो पूरे वर्ल्ड का निकालता है, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं, की एडवांटेज ऑफ नेफ्ट डिटेल्स वर्सुस, अभी हमने ये पढ़ा था, देखो ये किसी ने डबल क्वेश्चन भेजा होगा तो हो गया, ठीक है। क्या है की एडवांटेज ऑफ एनईएफटी फॉर रिटेल यूजर्स क्या है। तो एनईएफटी का यही है कि एनईएफटी का एक ही फायदा है, नो मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट, ओके, बट आरटीजीएस में मिनिमम अमाउंट स्पेसिफाइड है, विच इज नॉट ए फीचर ऑफ आरटीजीएस, ओके।
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यस, मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 2 lakhs, ओके। डायरेक्ट क्रॉस बॉर्डर कैपेबिलिटी, देखो ये नहीं आना चाहिए कि आरटीजीएस डायरेक्ट क्रॉस बॉर्डर कैपेबिलिटी नहीं है, ओके, तो ये ऑप्शन है। हाँ, यस, एंड नो मैक्सिमम, यस करेक्ट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन इंडिया, देखो इन्वेस्टमेंट की जहां भी बात आएगी, इन्वेस्टमेंट या शेयर्स, ओके, दैट विल बी रेगुलेटेड बाय सेबी, ओके। सेबी इन्वेस्टर रेगुलेशंस, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, जो भी है ये सब चीजें सेबी ही देखती है, और सेबी के पास ही आपको रिपोर्ट करना है। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस वो क्या करता है? सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेल भी करता है और परचेज भी करता है। सेल क्या करेगा? किसी भी बैंक को एसएलआर में इन्वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लेगा। किसी को अपना एसएलआर ज़्यादा है, हटाना है, या उस इन्वेस्टमेंट को बेचना है, तो वो उसको सेल कर लेगा। ठीक है, ये इस तरह से सेल एंड परचेज दोनों मैनेज होते हैं, ओके। अंडर द अटल पेंशन योजना, कंट्रीब्यूशंस कैन कंटिन्यू अंटिल, देखो कंट्रीब्यूशन अटल पेंशन योजना का एज जो है ना, एंट्री एज, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करने का आप 40 इयर्स तक ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वैसे एपीवाई में ज़्यादातर एज ही पूछता है, एंट्री एज और मिनिमम पेंशन अमाउंट पूछ सकता है। व्हाट इज मिनिमम पेंशन अमाउंट अंडर एपीवाई, ओके। द कंपाउंडिंग कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, कंपाउंडिंग क्या होता है? अर्निंग इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल एंड एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसी से आपको पता चले कंपाउंडिंग। सपोज इंटरेस्ट रेट is 10% and you have deposit yearly, you have deposited 1000 for 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि इसका 10% कितना होगा? 100 रुपीज। 100 रुपीज फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिला और 100 रुपीज ही सेकेंड ईयर मिलेगा, मतलब इसका प्रिंसिपल नहीं चेंज होता। तो 200 आपको इंटरेस्ट मिला और 1000 ये है, टोटल आपको 1200 मिल गया। अब आते हैं हम कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग है 1000 आपने जमा किया, अगले साल ये इसका 10% आपको 1000 तो आपका बचा ही है, इसका 10% मतलब 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला, ठीक है। ये 10% मिला जब, तो ठीक है, 10% क्या मिला? ये 1000 तो आपका यही वाला अमाउंट है, और ये 10% इंटरेस्ट वाला अमाउंट है। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 1000 जो आपका अमाउंट है वो तो है ही है, इस पे भी मिलेगा इंटरेस्ट 10 रुपए, ठीक है, और इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा 10 रुपए, ठीक है। ये तो अमाउंट है, इसको छोड़ दो, अभी इसको भूल जाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, 10% इंटरेस्ट मिला 100 रुपए, अगले साल इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा 10 रुपए, और इसका 100 रुपए मिलेगा, और इस पे जो है इंटरेस्ट लोगे तो 10 रुपए आ जाएगा। इस तरह से आपको टोटल इंटरेस्ट मिला 100, 110, 110। इस कितने और टोटल रुपए आपके थे 1000, 1210। इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब प्रिंसिपल पे तो कंटिन्यूड इंटरेस्ट मिलेगा ही, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 70। अच्छा, और ये रूल ऑफ 72 जो है, एक्चुअल में ये रूल ऑफ 72 नहीं है। इफ यू अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा, लॉगरिदम लेकर के आप सॉल्व कर सकते हो इसको। अगर आप P1 प्लस R/100 होल पावर n
दोनों तरफ का लॉग ले लो, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, पी प्लस एन लॉग 1 + r/100, ठीक है। बेस 2 पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, लेकिन ये 69 के अराउंड आता है, इसको ले लेते हैं 72। क्यों? क्योंकि 72 इजीली डिवाइड होने वाला नंबर है। इवन नंबर से भी डिवाइड होगा, ऑड नंबर से भी डिवाइड होगा, और उसके पास में भी है। तो हम इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे, दैट विल बी प्योर मैथमेटिकल सेशन। ओके, वी विल बी डिस्कसिंग ऑन समथिंग एल्स। एंड क्या बोल रहा है? एक मिनट, कहाँ गया? एक मिनट। कंपाउंड, यस, दिस इज देयर। 134 पे हम थे ना। यूजिंग रूल ऑफ 72 एट 8%। 72 का रेल ये है कि जितने परसेंट का रेट चल रहा है उससे डिवाइड करो। 72 है तो 8 से डिवाइड करो, कितना आया? 9। तो 9 ईयर्स में वो जो प्रिंसिपल है वो डबल हो जाएगा। तो अगर ये 8% का चल रहा है तो कितनी है? बहुत सिंपल था, डिवाइड किया 9 ईयर्स, आंसर आ गया 9 ईयर्स। अच्छा देखो, एक्चुअल में 9 से थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया लॉगरिदम लेके सॉल्व करोगे तो 9 ईयर्स ऑप्शन में होना चाहिए, 9 ईयर्स ही रहेगा। ये हमने अपने से अलग रखा हुआ है ऑप्शन, देन यू मे लीव इट, बट 9 ईयर्स विल बी द आंसर। अंडर द जीएसटी, व्हेन द रेसिपिएंट नॉट द सप्लायर पेज द टैक्स, इट इज नोन एज, ठीक है। When the recipient, not the supplier, pays tax, it known as reverse charge mechanism. रिवर्स चार्ज क्या होता है? देखो, जीएसटी आपने एक बार कलेक्ट किया ए से, ठीक है, और यहाँ पर बी है, बी ने इसको जीएसटी पेमेंट कर दिया इससे लेते समय, इसने कहीं से और लिया था। देन द बी क्लेम द जीएसटी फाइलिंग, व्हेन फाइलिंग, ठीक है। तो एक तरह से जीएसटी, अगर रेसिपिएंट नहीं है, नॉट द सप्लायर, अगर वो सप्लायर नहीं है, उसने अगर टैक्स पेमेंट किया है, तो इस जीएसटी का रिटर्न जो ले लेता है वो दैट इज कॉल्ड द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा, उसके थ्रू बहुत सारे जीएसटी के जो आप फ्रॉड देखते हो ना, जीएसटी के फ्रॉड, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को ही लेके हो रहे थे। अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी का जो है वही रहता है। इंडिविजुअल में बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू, इंडिविजुअल आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम ले आया था, इसलिए उसने डायरेक्ट एक क्वेश्चन नहीं पूछा, ये पूछा कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट, आप इसमें आंसर लगाओ। तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट जो स्कीम है उसके थ्रू आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते, ठीक है। नाउ, इश्यूइंग बोनस शेयर्स causes a company's net assets to सी। बोनस शेयर क्या होता है? बोनस शेयर्स, ठीक है, एक तरह से कंपनी को, मान लो अगर 500 रुपए का डिविडेंड पे करना है, कंपनी के रिजर्व में 500 रुपया रखा हुआ है, कंपनी ने कहा कि मैं 500 रुपया नहीं दूंगी, अभी मेरे मार्केट में शेयर का प्राइस 10 रुपया चल रहा है, मैं सबको शेयर दूंगी। तो 50 शेयर कंपनी निकालेगी 500 के। हालांकि हम एग्जैक्टली शेयर का मार्केट वैल्यू पे नहीं बात कर रहे हैं, हम समझाने के लिए बात कर रहे हैं। वेदर यू टेक मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू और इशूइंग वैल्यू और बुक वैल्यू, इट इज अप टू यू, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी शुड नो दिस। चलो, तो अभी क्या है, ये 50 शेयर्स इशू कर दिया उसने, ए बी सी शेयर होल्डर्स थे, इसमें 500 रुपए का डिविडेंड था कंपनी के पास। इसने क्या किया, कहा कि आप भी 10 शेयर ले लो, आप
30 शेयर ले लो, आप 10 शेयर ले लो, हो गया। अभी ये 500 रुपए इसके पास बच गए, ठीक है। तो क्या कंपनी के पास कोई असेट आया क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है कि आया, नहीं। ये डिविडेंड कंपनी के अकाउंट में से डेबिट होता, लेकिन ये डेबिट नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी के असेट में कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, शेयर, कंपनी को शेयर इश्यू करने से, शेयर इश्यू करने से जैसे शेयर प्रीमियम अकाउंट में पैसा आता है वो अलग है, लेकिन ऐसी कंपनी जो अलग से शेयर ही दे रही है, मतलब मान लो पैसे की जगह इसने शेयर दिया, शेयर दिया मतलब आपको पार्टनर बना दिया, तो एक तरह से इसने किसी भी तरह का आपको पैसा नहीं खर्च किया, आप में बता दिया कि आपकी हिस्सेदारी इसमें बढ़ गई है, ठीक है। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम, like if you are issuing the IPO, then share premium account will be there, ठीक है। कंपनी के 10 रुपए में उसने शेयर इशू करे और 50 रुपए में लिस्ट हुए, तो कंपनी के पास 40 रुपए का प्रॉफिट आया ना हर शेयर पे, मतलब शेयर प्रीमियम आया, तो इसका कंपनी का रिजर्व बढ़ेगा। लेकिन कंपनी ने अगर बोनस इशू किया, 5 लोगों को अलग से शेयर दिया, तो इसके बदले में इसको कोई पैसा नहीं मिला, तो इसका कोई असेट इंक्रीज नहीं हुआ। ओके, चलो। कॉमन गेज ऑफ जनरल इन्फ्लेशन, देखो इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार कि जी डिफ्लेटर क्या होता है, जो नॉमिनल जीडीपी जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, इन्फ्लेशन को, उसको डिवाइड करके रियल जीडीपी में ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिफ्लेटर, एंड डिफ्लेटर एक कॉमन मेजर है। दूसरा क्या है, इन्फ्लेशन का जो other common gauge है, not only the deflation is price is high, then also we can say the inflation is high. To minimize tax impact during the inflation, okay, see, टैक्स इन, देखो इस पे तो डिस्कशन थोड़ा सा हम शेयर करेंगे। टू मिनिमाइज टैक्स इम्पैक्ट ड्यूरिंग द सेशन, मीन्स ड्यूरिंग inflation, the banks will often prefer the LIFO inventory method. This is inventory management. Suppose there is an inventory, okay, अब इन्फ्लेशन हो गया तो प्राइस हाई होगा, ओके, तो जो लास्ट में है उसका प्राइस कम होगा आइटम का, ओके, उसको पहले निकालोगे, और जो अभी बन रहा है उसका प्राइस मार्केट के हिसाब से होगा तो उसको बाद में निकालोगे। इसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो क्या होता है? फीफो मेथड होता है फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। आईएफआरएस का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, ये होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये आपको थोड़ा अपने हिसाब से याद रखना पड़ेगा। विच ट्रांजेक्शन डायरेक्टली इंक्रीजेज ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्थ, ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्थ, नेटवर्थ क्या है? अगर उसके पास अर्निंग बढ़ रही है, एक्चुअली में नेट अर्निंग, मतलब अगर ऑपरेटिंग इनकम बढ़ी लेकिन एक्सपेंसेस भी बढ़ गया और नेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो नेटवर्थ में कोई भी इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर उसके पास कैश रिमेनिंग है, कैश या कैश इक्विवेलेंट बच रहा है उसके पास, देन उसकी नेटवर्थ बढ़ जाएगी। तो कह रहा है कि देखो बोनस शेयर से कुछ नहीं होगा, हम पहले देखे हैं। असेट परचेज से, असेट परचेज से देखो नेटवर्थ बढ़ सकती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बढ़ेगी, लेकिन जैसे कोई हम असेट परचेज करेंगे हमारे पास कैश भी तो आउट हो जाएगा, मतलब हम इधर से
कोई चीज परचेज की है वो इधर कैश डाउन हो गया तो इससे कोई नेटवर्थ नहीं बढ़ेगी। तीसरा क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब किसी सामान में प्रॉफिट हुआ, अर्निंग्स का जो बचा हुआ था पार्ट वो बढ़ा, ठीक है, तो उससे एसेट बढ़ जाएगी। डिबेंचर्स रिडीम किए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स आपने जब रिडीम किए तो डिबेंचर में तो ऑलरेडी आपका पैसा था, वही पैसा आया है, आपने उसको पहले दिखा रखा था, तो नेटवर्थ में उसमें कोई इंक्रीज नहीं होगा। नेटवर्थ में इंक्रीज करने के लिए आपको कोई भी असेट ऐसा इंक्रीज होना पड़ेगा जिससे कहीं से डेबिट ना पड़े। तो आपकी एक तरह से इनकम अगर इंक्रीज हुई, हाँ, आपकी इनकम इंक्रीज हुई 500 करोड़ से, और 500 करोड़ की आपने बिल्डिंग खरीद ली, तो ये 500 करोड़ की आपकी नेटवर्थ बनी हुई है, वो बिल्डिंग का 500 करोड़। बट आपने अपने इनकम से जो होनी थी उसमें से भी 500 रिजर्व्स को नीचे ला करके 500 करोड़ का इन्वेस्ट कर दिया, तो आपकी नेटवर्थ नहीं बढ़ी है। A legitimate purpose for a company share to buy back is to return x, yes, सही बात है। जैसे एक कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के पास बहुत पैसा है, तो कंपनी इस पैसे क्या करेगी? वो कहेगी भाई शेयर होल्डर कम करो क्योंकि इनको हमें प्रॉफिट देना पड़ेगा। आप शेयर को बाई बैक कर लेते हो। बाई बैक मतलब शेयर को वापस खरीदते हो। मान लो आपका 70 का शेयर चल रहा है, आपके पास कैश ज्यादा है, आपने बोला कि भाई हम शेयर 90 रुपीज पे ले रहे हैं, मार्केट में 70 का है, हम 90 पे ले रहे हैं, आप बेचना चाहो बेच सकते हो। तो दैट इज बाई बैक ऑफ शेयर। अच्छा, इससे ये पता चल रहा है कि बाई बैक करोगे तो आप शेयर होल्डर को मनी दोगे। बाई बैक मतलब शेयर होल्डर को मनी दोगे और उससे शेयर लोगे। तो बाई बैक आप तभी कर सकते हो जब आपको मनी हो। इफ यू हैव मनी देन मनी देयर विल बी ए बाई बैक। ओके। Which of the following is not fundamental tool for AML? This is related to KYC AML guidelines RBI. Customer due diligence, yes. Transaction monitoring is yes. Employee training may be the part, but it is not actually mentioned whether employee training is this. But we already know that marketing campaign has nothing to do with AML. Means how with the marketing you may कीप ए चेक ऑन एएमएल, मतलब अगर कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहे तो क्या आप मार्केटिंग करके रोक पाओगे? नो। मार्केटिंग से अवेयरनेस आती है लोगों में कि दिस शुड नॉट बी डन। ओके, बट इफ एनीवन इज ट्राइंग देन यू मस्ट हैव ए मैकेनिज्म टू कंट्रोल इट। And record keeping, yes, it is very essential part of this for all transaction, 5 years to keep the record. In M banking, M is refers the mobile, the subprime mortgage crisis. Okay, means subprime means other than the specified level of risk. Suppose the risk level was 100, but they have accepted the risk level at 150 or more, then this is subprime lending crisis, means high risk customer lending to high risk customers known as subprime lending. Okay, which area is not officially part of India's financial system? मतलब इंडिया में जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस होता है, यस। गवर्नमेंट फाइनेंस, यस। एग्रीकल्चर फाइनेंस, यस। डेवलपमेंट फाइनेंस, यस। पर्सनल फाइनेंस, सी पर्सनल फाइनेंस, यहाँ पे इसको पूछना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस मीन्स रिलेटेड टू कंज्यूमर लोन्स। ओके, ये किसी ने कुछ क्वेश्चन शेयर किया बट यहाँ पे कुछ और रहा होगा। ओके, बिकॉज पर्सनल लोन्स आर आल्सो अवेलेबल under Indian law. Which entity is not a scheduled bank? Money lender is not a bank, whether scheduled or unscheduled.
Even this may be asked that which are not a proper lending system, form part of a proper lending system of India, that is also money lender. Which of the following constitute part of India's tax revenue? Okay. Income, expenditure, property, goods and services, all are this. The primary aim of creating special economic zones was, okay, in SEZ you may directly make payment in foreign currency. Okay, they may accept the payments in foreign currency. That was intended to increase the foreign investment and also to promote exports. वो लिखा नहीं है, एक्सपोर्ट को प्रमोशन किया. About 50% of global, see, this was the current news in which it was asked 50% of global financial, okay, global carbon emission is managed by, see, the IAS nuclear bank concept, that was also a part of current affairs. When this year it is not going to be asked. Future trading option and future trading, hopefully you may know. ठीक है. A future trading means purchasing or taking a position, okay, to be transacted on a later date. Which of the index is primary gauge of inflation in India? ठीक है. Wholesale price index. Actually, price index may gauge the inflation. In India, actually, wholesale price index is there. If you are in bank, you see after 3 years, every time 1 quarter, your DA is revised. G8 summit. Then now you know, recently there has been a meeting in Canada. This was the last year question actually asked in SBI CBO. But this year the meeting was in Canada. Then you must learn who hosted it, which country hosted is. Okay, which was the series, means first, second, or third, or fourth, or 20th meeting. Okay, who was the was acting as a host or president for these meetings? How many members are there? Okay, who was co-chairing with the meeting? These you must, see, Hugo Chavez by that time वेनेजुएला के PM थे. Why? Because they it was in news, and that's why this country was in news. Then there has been president. Even this time Canada has got the new uh, prime minister. Okay, then you may go through and learn it. It may be asked. After increasing 25%, 20% India's farm, see, this was the data released by the RBI by that time. Total amount of farm loan waiver. This time no such scheme was launched. It is not important. डिलिमिटेशन कमीशन ये अभी भी न्यूज में चल रहा है. ठीक है, और ये तमिलनाडु को भी लेकर के चल रहा है. तो ये भी, दिस इज ए पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स एंड यू में study by yourself by such questions which is related to this. World Health Organization urged a ban on advertisement in which the items to protect which youth from tobacco. Okay, tobacco से बचाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ने ऐसे आइटम्स पे, ऐसे एडवर्टीजमेंट्स पे बैन की बात करता है जिसमें यूथ को इन सब टोबैको के लिए इंस्पायर किया गया हो. किस कंट्री को इंडिया ने अभी अर्थक्वेक रिलीफ दिया था? ओके, तो वो
or not only India, even if world organizations are giving. This was the very puzzling question that which river is not governed Indo प्रीति, क्योंकि बाय दैट टाइम नेपाल से फायरिंग वाला और वो सब न्यूज सुना था तो वो चीजें आ रही थी। ठीक है। विच इज नॉट द नेम ऑफ इंडियन स्पेस मिशन, कौन सा है? द विजय हजारे ट्रॉफी इज अवार्डेड इन विच स्पोर्ट्स? विजय हजारे ट्रॉफी इज awarded in cricket. Okay. Actually, see, whenever you are preparing for such things, you must go through all such other trophies. Okay. The official theme of recent Olympic torch means, but such type of any event is not in news. Okay. By that time, it was Journey to Harmony was the theme, but this time no such event is going on. You are actually immune to such questions. Which program is not a social development scheme? Mid day meal, Indira Awas Yojana, Bharat Nirman Yojana, Sarv Shiksha Abhiyan. Okay, and this. See, Bharat Nirman is not any such scheme. Next is, see, which country is not ASEAN member? Already I said that such type of question will be asked. तो ब्रिक्स का याद कर लो, एशियन क्लियरिंग यूनियन के मेंबर से याद कर लो। ठीक है, ये चीजें। अर्जुन अवार्ड अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस के अंडर आएगा और ये स्पोर्ट्स में दिया जाता है। और रिसेंटली किसको दिया गया? या विम्बल्डन या वर्ल्ड लेवल के जो ऑर्गेनाइज होते हैं गेम्स, उसमें कौन सा रहा? तो ये हमने लास्ट पार्ट खत्म किया। और होपफुली आई expecting that you will have enjoyed this session. Further, I would also suggest that basics बेसिक इकोनॉमिक्स है, वो आप पढ़ लो। दूसरा, अर्लियर वीडियोस हैं, यू में गो थ्रू द चैनल एंड get it. Okay. For and either you join channel of exam zone underscore 247 where you can download the over telegram. Okay. All PDFs for free, whatever is available there, and study it. Hope you find this useful. Thank you. Have a nice learning.